خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کی تعریف ہو، خدا ان پاک ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا ان اس وقت کے لیے کہ خدا ان تو نے پھر سے ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم تیرے پاس آئیں، تیرے قدموں میں آئیں خدا ان، اور خدا ان تجھ سے برکت پائیں، تجھ سے زور پائیں، نیا مسا پائیں خدا ان خدا، جو بھی ہماری زندگی میں اس وقت مشکلیں چل رہی ہیں، پریشانیاں چل رہی ہیں، ہم سب وہ اپنی کہیں ہماری غلطی سے ہو گیا ہے خدا خدا، کہیں کچھ دشمن نے ہمارے اوپر کوئی وار کیا ہے، ہم سب وہ فکریں، وہ پریشانیاں، وہ بیماریاں خدا ہم تیرے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، کیونکہ خدا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تجھے ہماری فکر ہے خدا، تو نے کہا کہ اپنا سارا بوجھ مجھے دے دو، اس لیے خدا ہم اپنا سارا بوجھ تجھے دے دیتے ہیں خدا خدا، اور ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم تیرے قدموں سے اٹھیں گے تو خدا تو ہمیں تسلی سے، اطمینان سے، خوشی سے، شادمانی سے، اور خدا تیری طرف سے جو الہی شفا ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ آج پھر سے تو اپنے دل کی باتیں ہمارے ساتھ کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے بچوں کے لیے خداوند روز یہ انتظام کرتا ہے کہ جو کچھ ہمیں کرنا ضروری ہے، جن باتوں کو جاننا ضروری ہے، تو باتیں خدا بھی ہمارے اندر چل رہی ہیں، کوئی گناہ ہے، کوئی گندگی ہے، کچھ بھی ہے خدا جو تیرے خلاف ہم کر رہے ہیں خدا، یسو کے نام سے آج جب تو اپنے منہ سے وہ باتیں کریں تو ہمارے اندر وہ طاقت آ جائے خدا، ہمارے اندر وہ زور آ جائے کہ ہم دشمن کے ان سارے گندے کاموں کو، سارے تاریکی کے کاموں کو اپنے پاؤں تلے کچل جائیں یسوع کے نام سے خدا خدا، ہمارے اندر وہ دلیری آ جائے خدا، وہ قوت آ جائے کہ ہم دشمن کے آگے کھڑے ہو سکیں، دشمن کو ہرا سکے، دشمن کو اپنے پاؤں تلے کچل سکے خدا، تاکہ خدا تیری طرح ہم زوراور بن کے خدا تیری طرح خدا ہم بھی دشمن کو شکست دے کے خدا یسو جی اس جگہ تک جا سکے جو تو ہمارے لیے تیار کر رہے، یسو کے نام سے خدا آج ہم میں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے خدا، ہم سب کو اپنی روحانی نعمتوں سے، برکتوں سے بھر دینا خدا ہمارے ذہنوں میں کہیں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے خدا، تیرے اس کلام کو جو تو یہ اسٹڈی ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے، جو تو ہمیں سکھا رہا ہے کہ کس طرح سے ہم اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں، کیسے ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ جس طرح خدا یسوع مسیح چلا خدا اسی طرح ہمیں بھی چلنا ہے، جیسے تیرے خدا یسوع مسیح کے شاگرد چلے اسی طرح سے انہی رستوں پہ ہم بھی چلیں گے تو ہم اس جگہ تک پہنچیں گے خدا جی، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں کہ خدا وہ کلام کے بھید، وہ مکاشفے تو ہمارے اوپر کھول رہا ہے، جو خدا تو شاگردوں کے ذریعے سے ہمارے اوپر کھول رہا ہے، جو کہ ہمارے پرانے عہد نامے کے مقدسین کے اوپر نہیں کھلے تھے، وہ کلام، وہ بھید، وہ باتیں ہم جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے تو ہمارے ساتھ کر رہا ہے، وہ ہمارے اوپر وہ بھید کھول رہا ہے، اس لیے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا، جب تو ہماری روحانی آنکھوں کو، کانوں کو کھول رہا ہے، عقلوں کو کھول رہا ہے، تو خدا جو بھی بدی کی قوتیں اس کلام کو سمجھنے میں، اس کے اوپر عمل کرنے سے روکتی ہیں، ان ساری بدی کی قوتوں کو تیرے یسوع نام سے ہم سب مل کر ایک روح میں بند کر تیرے یسوع نام سے باندھتے ہیں اور اتھا گڑھے میں بند کر دیتے ہیں، یسوع کے نام سے ہمارے گھروں میں خداوند ہمارے بدنوں کے اوپر ہمیشہ تیرا گہرا مسا چھایا رہے، یسوع کے نام سے ہم اس دعا کو بڑے ایمان سے اور توکل اور بھروسے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین آمین۔ آمین آمین۔ ہم نے جو اسٹڈی شروع کی ہے یہ تیسری بار جب سے یہ گروپ شروع ہوا ہے تو ہم اس کو سیکھ رہے ہیں، تو میرا ایمان ہے کہ اب اور زیادہ آپ کو اس کی سمجھ آئے گی، اور کچھ باتیں جو پیچھے کلیئر نہیں تھی ہوئی، اب میرا ایمان ہے کہ آپ سب کے اوپر وہ بھید جو ہیں وہ کھلیں گے اور زیادہ اچھے طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکیں گے، اور جن کا یقین نہیں بھی ہے، میرا ایمان ہے کہ اس دفعہ
खुदावंद उनकी अक्लों को भी खोलेगा और उनको भी तैयार करेगा, ताकि कलाम की जो सच्चाइयां हैं, क्योंकि हम कोई अपने से नहीं, हम हवालों के साथ, और कोई एक दो हवाला नहीं होता, ज्यादा होते हैं, पुराने ऐतनामे से भी नए ऐतनामे से भी, है ना। तो मेरा ईमान है खुदावंद आपकी अक्लों को खोलेगा और कलाम के ये भेद जो मेरे और आपके लिए हैं वो खुलते जाएंगे। प्रेज गॉड, खुदा उनका शुक्र हो। हम ये स्टडी सीख रहे हैं कि आसमान पे जगह हैं, एक जगह नहीं है, 3 जगह हैं, है ना। और नया आसमान, नई जमीन, और नया यरूशलेम, है ना। तो जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने तमसील के जरिए भी इस बात को वाजिया किया कि कोई 30 गुना फल लेके आते हैं, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आते हैं। तो इसलिए ये इकट्ठे ही नहीं रह सकते, इन सब की जगह जो है वो अलग अलग होगी। जो 30 गुना लेके आते हैं फल, जो 60 गुना, जो 100 गुना लेके आते हैं, है ना। तो इसलिए जो खुदा यीशु मसीह के ऊपर सिर्फ ईमान लेके आते हैं, कि खुदा यीशु मसीह हमारी गुनाहों की खातिर उसने जान दी, जी उठा, और वो खुदा उनका बेटा है, और दिल से ईमान लेके आते हैं और मुंह से इकरार करते हैं, तो वो निजात पाते हैं, यानी वो इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाते हैं, है ना। और जो भी खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आता है, वो जब इसमें दाखिल हो जाता है, तो ये नई जमीन है ना। ये जो ग्रीन सा हमें नजर आ रहा है, ये नई जमीन है। तो इसमें दाखिल हो जाता है, और जैसे जैसे ये देखें स्टेप बाय स्टेप बने हुए हैं, जो कि हमें खुदा के कलाम में से पता चलता है। खुदा यीशु मसीह ने हमें, जब निकोदेमस से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो नए सिरे से पैदा होते हैं वो इसमें, जैसे कह लें, वो नए सिरे से पैदा होते हैं, वो खुदा की बादशाही को देख सकेंगे। जो नए सिरे से पैदा नहीं होते, जैसे कि ये बाहर जो आदमी खड़ा है, वो देख भी नहीं सकता, खुदावन की बादशाही को देख भी नहीं सकता। तो इसलिए खुदावन की बादशाही को देखने के लिए नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, यानी इस जमीन में आना जरूरी है। और जो इस बादशाही में, बादशाही असल में ये कहाँ है, खुदावन के तख्त के आगे, और खुदावन का जो तख्त है ना। तो ये एक किस्म की खुदावन की बादशाही है। तो जो नए सिरे से पैदा होंगे, वो इसको देखेंगे दूर से, लेकिन अगर इसमें दाखिल होना है तो फिर उनको पानी का बपतिस्मा, पाकरू का बपतिस्मा, और पाकीज़गी में चलना, या वो सारी खुसूसियात जो हमने सीखी थी, वो उसकी जिंदगी में काम करना, यानी उसको फितरताई में चलना, हलीमी में, पाक तरीन उसका ईमान हो, मोहब्बत हो पाक तरीन खुदाउन के साथ, और खुदाउन के साथ वो मुसलसल चलने वाला हो, तो वो इस में दाखिल होगा, यानी पाक तरीन मकाम में, ये वाली जगह जो है जहाँ पे अहद का संदूक पड़ा है ना। और लेकिन अगर वो, जैसे खुदावंद की खातर, खुदा यीशु मसीह के नाम की खातर, यानी उस पे खुदा यीशु मसीह पे ईमान रखने की वजह से अगर वो शहीद हो गया, यानी उसको मार दिया गया है जान से, तो वो यहाँ पे दाखिल होगा। ये जो पाक मकाम है, यानी जो पर्दे के आगे जगह थी, तख्त के आगे जगह थी, है ना। तो ये नया आसमान है, ये नई जमीन है, ये वाली जो ग्रीन सा है, ये नई जमीन है, और ये नया आसमान है। और जहाँ पे अम, अहद का संदूक पड़ा है, जहाँ पे हमें रोशनी नजर आ रही है, या कह लें आग नजर आ रही है, वो नया यरूशलेम है। उसमें जाने के लिए हमारे अंदर वो सारी खुसूसियात, जैसे कह लें, जो खुदा यीशु मसीह में है, वो हमारे अंदर भी होनी चाहिए। तो ये हमने सीखा था पीछे, और आज हम सीखेंगे कि हमारी जो कॉलिंग है वो कहाँ की। पहले हमने ये सीखा कि वो डाकू कहाँ गया, और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, यानी पुराने ऐतनामे के हमारे मुकद्दसीन और सारे जो शहीद हैं, वो कहाँ पे गए।
اور फिर हमने सीखा था कि खुदा यीशु मसीह कहाँ पे गए। है ना। तो आज अगर हम सीखेंगे कि हमारी जो कॉलिंग है, यानी हमने यूहन्ना 14 बाब में पढ़ा कि खुदा यीशु मसीह ने हमारे साथ वादा किया कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम भी होगी, मैं जाके जगह तैयार करता हूं। तो हमने सीखा कि खुदा यीशु मसीह जो है वो कोने के सिरे का पत्थर है। तो खुदा यीशु मसीह ने ये इमारत जो थी, ये नया यरूशलेम जो था, वो बनाना शुरू किया। यानी कोने के जो, वो उसका क्या कहते हैं, घर घुर बनाने का थोड़ा सा जानते हैं तो उनको पता होगा कि बुनियादें रखी जाती हैं या कोने के सिरे का पत्थर क्या है जब कोई इमारत बनाई जाती है ना। तो पहला पत्थर जो था वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने रखा और उसने ये इमारत बनाना शुरू की। फिर खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने, और उसी तरह हम भी जो उस तरह का ईमान रखते हैं, हम भी वो पत्थर जो हैं वो इस इमारत के ऊपर रख रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि खुदा यीशु मसीह ने मुझे और आपको, जो नए ऐहद के हम मुकद्दसीन हैं, वो अ, हमें इस इमारत को बनाने के लिए बुलाया है ना। हमारी कॉलिंग जो है, हमारी बुलाहट जो है कि हम नया यरूशलेम बनाएं। लेकिन जो उस तरह से फिर नहीं चलते पाकीज़गी में, तो उनके लिए फिर कह लें वो नई जमीन और जो नया आसमान है वो जगह होगी। लेकिन जो जैसे जैसे हम उसके कदम पे कदम कह लें रखते जाएंगे, पीछे पीछे चलते जाएंगे, तो फिर हम ये नया यरूशलेम बनाएंगे, अब खुद बनाएंगे, है ना। अपने जैसे कह लें नेक कामों से, उसकी फर्माबरदारी में चलते हुए, है ना। कोई नहीं या खुदा नहीं बना रहा, हम खुद बना रहे हैं। जिस तरह खुदा यीशु मसीह कीमती पत्थर था, वो था जिंदा पत्थर, अभी हम हवाले पढ़ते हैं ना। तो हम भी अगर उस कीमती पत्थर की मानिंद बन रहे हैं और उस जिंदा पत्थर की मानिंद बन रहे हैं, तो इस यरूशलेम में हमारा भी एक पत्थर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। फिर होर कोई एक का फूस लगेगा। ठीक है। तो हम हवालों से सीखते हैं कि हमारी कॉलिंग जो है वो यहाँ की है। और जी अंजना है हमारे साथ, है ना। तो हमें भी कीमती पत्थरों की मानिंद बनते जाना है, क्योंकि ये एक इमारत बन रही है, कोई अलग अलग नहीं होगा। जैसे हमने उस दिन 21 काशवा 21 पाक में पढ़ा था कि कौमें, हम कौमें नहीं हैं, हम कौम बनेंगे, एक बनेंगे, एक रूह। जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा, जी अंजना हमारे साथ है। हाँ जी। हाँ जी, काशवा 21 पाक उसकी पहली आयत है ना, कि हम एक इमारत बना रहे हैं, अलग अलग घर नहीं बना रहे। एक एक मकान जड़ा वो नहीं साडे लिए साडा बन रहा, एक ही यरूशलेम जो है वो बन रहा है। इसलिए ये दुआ में जो बोलते हैं कि साडा भी इत्थे मकान होएगा, नहीं, हमारी एक ही इमारत है। जहां पे खुदा यीशु मसीह होगा वो ही इमारत मेरी और आपकी होगी, क्योंकि हम उस इमारत को बना रहे हैं। ये हमने पीछे काफी जैसे रोमियो के खत में ये सीखा है। जी पढ़ना। 21 दी फर्स्ट वन हाँ जी, बस। वैसे ये पढ़ा हुआ है, लेकिन हाँ, जिससे हमें पता चलता है। जी पढ़ना। कि नया ਤਾਂ ਮੈਂ यरूशलेम। ਨਵਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਨੋ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, यरूशलेम जो है, न्यू यरूशलेम मुकद्दस शहर जो है, वो क्या है, दुल्हन की मानिंद सजा हुआ है, दुल्हन की मानिंद आरास्ता है ना। जिसने अपने शौहर के लिए यानी अपने आप को तैयार किया या बनाव श्रृंगार किया, है ना। तो ये रूहानी तौर पे एक इमारत बन रही है। और हमारा शौहर कौन है, हमारा हस्बैंड कौन है, खुदावंद यीशु मसीह। तो जो जो यरूशलेम है वो क्या है, न्यू यरूशलेम जो क्या है, वो दुल्हन है। तो दुल्हन कौन है, हम है ना। तो इसलिए नया जी। यरूशलेम जो है उसी को दुल्हन कहा गया है, उसी को मुकद्दस शहर कहा गया है। और वही
जैसे कह लें कि तैयार हो रही है रूहानी तौर पे। ये कोई घर हम जब ऊपर जाएंगे तो ऐसी कोई इमारत नजर नहीं आएगी, ये ना उसी सोच के चाहिए कि ऐसा कुछ वो डब्बा सा बना हो गया। कुछ नहीं, वो हम ही खुद ही तैयार हो रहे हैं ना रूहानी तौर पे, क्योंकि अब हम क्या है, रोमियो में हमने ये स्टडी सीखी है कि हम रूहानी हैं, रूह से पैदा हुआ है, तो अब हम रूहानी हैं। तो जो कुछ भी हमने करना है रूहानी तौर पे करना है। तो इसलिए ये क्या है, नए यरूशलेम क्या है? दुल्हन है। और दुल्हन कौन है? मैं और आप है ना? तो इसलिए ये वहां पे तैयार हो रहा है, तो इसलिए इसको कोई बना नहीं रहा, या ये अजल से बने नहीं हुआ है ना? अजल से कौन से जगह बनी हुई है? वो यूहन्ना 14 बाब उसकी में तीसरी आयत में या दूसरी आयत में ये हमें पता चलता है कि जो मकान है वो बनाए आलम से पेशतर ही बने हुए हैं, हमने उनमें नहीं जाना। हमने कहाँ जाना है? जो खुद हम इमारत बना रहे हैं। ये जरूर पक्की गल करके रखियो। ठीक है। और इसी का ਜੀ 9 वर्ष पढ़ना। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੂਤਾਂ ਕੋਲ ਉਹ 7 ਕਟੋਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇਕੜ ਦੀਆਂ 7 ਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾੜੀ ਵਿਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ तेज सी। हाँ जी, प्रेज गॉड, है आमीन। ना? तो ये जब उसको दिखाने के लिए भी यूहन्ना अरब को लेके गया है फरिश्ता, तो एक किस्म के रूह की सूरत में लेके गया, है ना? क्योंकि ये रूहानी है। जो ऊंचा पहाड़ है यूहन्ना अरब जो के मकाशफा लिख रहा था, खुदावंद उसको ये सब कुछ दिखा रहा था। तो जब उसको दुल्हन दिखाने के लिए लेके गया या दुल्हन दिखाई, तो खुदावंद का बंदा या सॉरी खुदावंद का फरिश्ता उसको कहाँ ले गया? और वो मुझे रूह में एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और मुकद्दस शहर यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। और उसमें खुदा का जलाल था, क्योंकि क्या है, ये रोशनी ही रोशनी है, खुदावंद का जलाल ही है। और कोई इस तरह की इमारत जो है वो नहीं बनी हुई है ना। हम इसीलिए हमारे बदनों के अंदर से खुदावंद का जलाल जो है वो नजर आते रहना चाहिए हमें। आ, अपने नाम को ऊंचा नहीं करते रहना चाहिए, हमें हमेशा खुदावंद के नाम को जलाल देते रहना चाहिए। इसलिए वो फिर जलाल जो है वो हमारे बदनों से नजर आएगा, है ना? तो ये जलाल ही जलाल वहां पे होगा, रोशनी ही रोशनी होगी। जैसे मूसा जो था खुदावंद की हजूरी में जब बैठा था पहाड़ पे, तो उसका चेहरा जो था क्या रोशन हो जाता था। इसी तरह हम भी वहां पे रोशन होंगे। इससे पीछे इसी चैप्टर के कि हम भी वहां पे सितारों की मानिंद चमक रहे होंगे, है ना? चांद सूरज की वहां पे रोशनी की जरूरत नहीं होगी, खुदावंद की रोशनी और खुदावंद यीशु मसीह की यानी बर्रे की रोशनी वहां पे होगी, है ना? तो इसलिए जो बीवी है या जो दुल्हन है वो क्या है? वो एक रूहानी एक इमारत जो है वो हम बन रहे हैं, है ना? और यही है नया यरूशलेम। ठीक है। तो ये हमारी कॉलिंग है कि हम ही हैं वो मुकद्दस शहर जो आसमान से कब उतरेगा? जब 1000 साल बादशाही जो है यानी जो जमीन पे होगी खुदाम यीशु मसीह की, और जो खुदाम यीशु मसीह की दुल्हन है या सारे शहीद जो हैं और पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन, वो बादशाही जब जमीन पे खत्म हो जाएगी तब नया यरूशलेम या नई जमीन या नया आसमान उतरेगा, है ना? उससे पहले जो है 1000 साल बादशाही जो है जमीन पे ही होगी, लेकिन जमीन की नेचर बदल जाएगी, यानी उसकी जो कहते हैं खसलत जो है वो बदल जाएगी। लेकिन यही जमीन होगी जब 1000 साल बादशाही होगी, है ना? लेकिन जो अब्दियत में ये नया यरूशलेम जमीन पे एक जैसे कह लें उतरेगा। और 1000 साल बादशाही में भी जो दुल्हन है वो एक रूहानी या
रूह की सूरत में ही इस जमीन पे बादशाही करेंगे खुदाम यीशु मसीह के साथ। जिस तरह खुदाम यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे थे, तो वो एक रूह की तरह उन्होंने इस जमीन पे जो 40 दिन थे वो गुजारे थे, और वो शागिर्दों को नजर आते थे और वो दीवारों में से गुजर जाते थे, है ना। तो एक रूह की सूरत में खुदाम यीशु मसीह इस जमीन पे रहे थे। तो उसी तरह खुदाम यीशु मसीह की जो दुल्हन होगी, वो जलाली बदन के साथ इस जमीन पे बादशाही जो है खुदाम यीशु मसीह के साथ करेगी, है ना, उस वक्त। तो ये वैसे आयत हमने पढ़ी है पहले, लेकिन पढ़ते हैं हम कि ये साया 28 बाब उसकी 16 आयत में कि खुदाम यीशु मसीह क्या है, कोने के सिरे का पत्थर है। जी अंजना पढ़ना, खुदाम यीशु मसीह और जो शहर चैप्टर बनाना बाजी। शुरू, 28 चैप्टर उसकी 16 आयत। जी, यसाया 28 बाब इसलिए उसकी 16। ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਧਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, तो खुदाम यीशु मसीह ने इस इमारत को बनाना शुरू किया, वो बुनियाद है। खुदाम यीशु मसीह क्या है, महकम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमती पत्थर। खुदाम यीशु मसीह ने जब इस इमारत को बनाना शुरू किया, तो कीमती पत्थर जो है, कोने के सिरे का पत्थर जो है रखा, है ना। खुदाम यीशु मसीह ने इसको बनाना शुरू किया, और किस तरह से, ईमान से। जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा, जो कोई ईमान लाता है वो इसमें कायम रहेगा। ओके, ज़बूर 2 उसकी 6 और 7 आयत, और अमाल 13 बाब उसकी 33 आयत। ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਬਤ ਸਿਯੋਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन। हाँ जी, अम, अमाल 13 बाब उसकी 33 आयत। ਜੀ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੀਸੂ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਬੂਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਜੰਮਿਆ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, तो जो कोई भी खुदावंद पे इस तरह का ईमान लेके आएगा, तो जो बुनियाद खुदाम यीशु मसीह ने वो कीमती पत्थर रखा, जो कोई ईमान लेके आएगा वो भी उसी तरह का जैसे कह लें ईमान, या उस बुनियाद में उसका भी जैसे कह लें वो जुड़ जाएगा। और जिस तरह खुदाम यीशु मसीह ने इमारत बनाना शुरू की, हमारा भी अगर ईमान उस तरह का है, तो हम भी वो कीमती पत्थर बनते जाएंगे, है ना, और उस इमारत पे रखते जाएंगे। और जिस तरह कि तू मेरा बेटा है, तू मुझसे पैदा हुआ है ना, तो हम भी खुदावंद यीशु मसीह में जैसे कि नए सिरे से पैदा हुए हैं, अब हम कीमती पत्थर बनने के लिए एक किस्म का कह लें चुने गए हैं। और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर बना और उसने इमारत, तो यानी उस तरह से कह लें हम भी कीमती पत्थर बनते जाएंगे। हाँ जी, इफ्सियां 2 बाब उसकी 19 और 20 आयत। ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪ ਯਿਸੂ मसीह है। आमीन। हाँ जी, न्यू यानी बुनियाद, हम भी उसी बुनियाद पे अपना ईमान रखें जो खुदा यीशु मसीह की थी। तो आज
ये एक किस्म की आयतें जो हम पढ़ रहे हैं कि जिस तरह खुदा यीशु मसीह बुनियाद है, उसी तरह हम भी उस बुनियाद पे, उस नींव पे अपनी अपनी ईंटें जो हैं या अपने अपने जो पत्थर हैं, कीमती पत्थर, वो रखते जाएंगे तो ये इमारत जो है बनेगी, है ना? और इसी को और ज्यादा वाज़ह करें तो मुकाशवा की किताब 14 बाब में लिखा हुआ है ना कि शागिर्द क्या हैं, वो भी कीमती पत्थर हैं। मुकाशवा ਜੀ 21 बाब उसकी 14 आयत। ਅਤੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸਫੀਲ ਦੀਆਂ 12 ਨੀਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ 12 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, किसके नाम है? 12 जो शागिर्द हैं, जो Yes. बुनियादें हैं, नींव जो है ना? जो बुनियादें हैं वो कीमती पत्थर किसके हैं? यानी जो खुदाम यीशु मसीह के शागिर्द हैं। तो अगर मेरा और आपका भी इसी तरह का अ, ईमान है खुदावन पे या उस तरह से चल रहे हैं, वो जो सच्ची तालीम है खुदावन की, उस पे चल रहे हैं, उस पे हमारी बुनियाद है। आगे हम देखेंगे कि अगर झूठी तालीमों पे या गलत तालीमों के हमें फंसे हुए हैं तो फिर हमारी बुनियाद वो नहीं है ना? तो इसलिए ये बुनियाद जो है, जिस पे इमारत खड़ी होती है, जो हमें खुदा यीशु मसीह की तालीम कह लें, जो शागिर्दों के ज़रिए मिली, अगर उस पे अ, हमारा ईमान है, तो हम वो कीमती पत्थर बन रहे हैं। लेकिन अगर झूठी तालीमों में या गलत तालीमों में फँसे हुए हैं, तो फिर हम उस पे जैसे जब ये स्टडी शुरू की थी, तो मेरा ख़्याल है किसी को भी नहीं पता था कि जो पाक दामन कंवारी है, उसका ज़िक्र हमें मिलता है कि वो खुदा यीशु मसीह की दुल्हन है। सबको ये पता था कि वो अक्लमंद कंवारियाँ जो हैं, वो खुदा यीशु मसीह की दुल्हन है। तो इसलिए वो पाक दामन कंवारी को तैयार किस तरह होना है, ये मेरा नहीं ख्याल कि जब हमने ये स्टडी शुरू की थी, तो किसी को पता था। तो इसलिए ये वो बुनियादी या सच्ची जो तालीम है जिसके भेद खुदावंद आज आपके ऊपर खोल रहे हैं, अगर इस तालीम पे, सच्ची तालीम पे कि अ, जो खुदावंद यीशु मसीह जैसे चले, जिस तरह उस पकीजगी में चले, जिस तरह फर्माबरदारी में चले, उस तरह का अगर ईमान मेरा और आपका है, तब खुदावंद यीशु मसीह जब आएँगे बादलों पे तो हम उठाए जाएँगे, सारे नहीं उठाए जाएँगे। इसलिए ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी को पता था इस बात का। तो इसलिए उस तालीम पे अगर आपकी बुनियाद है, जो खुदावंद यीशु मसीह की सच्ची तालीम है कि कोई गंदा, कोई गुनाहगार बंदा उसमें दाखिल नहीं हो सकता। ये जो नया यरूशलेम है, इसमें कोई गुनाहगार, कोई जो अ, कह लें हरामकारी में या उसमें चल रहा है, वो दाखिल नहीं हो सकता। तो इस तरह की सच्ची तालीम जो है, उसके ऊपर अगर आप चल रहे हैं, वो ईमान है आपका, वैसा पाक तरीन विश्वास है, ईमान है, फ़ेथ है, तो अ, हम उस तरह की बुनियाद जो है वो रख रहे हैं, उस तरह के कीमती पत्थर बन रहे हैं, है ना? जिस तरह के खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों का था, है ना? दूसरा तिमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 18 और 19 आयत। ये आयतों को जी ज़रूर आप नोट करें और खुद से पढ़ें। जिसके भी दिल में कोई शक है, तो वो ज़रूर इन आयतों को और जो हम अक्लमंद कवारियों के लिए आगे पढ़ेंगे और या शहीदों के लिए, तो ज़रूर उस पे अपने-अपने घरों में गौर करें। वक़्त अब इतना नहीं है हमारे पास कि अभी भी हम डामाडोल रहें और कहें कि हाँ जी, सारा कुछ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਂ ਤੇ उठा के ले जाएगा, है ना? नहीं, ये झूठी या गलत तालीमें जैसे अ, कह लें मिल रही हैं या आप गलतफ़हमी में हैं या खुशफ़हमी में कह लें हैं कि हम सब कुछ करते भी रहेंगे और खुदावंद यीशु मसीह आएगा और हमें ले जाएगा। जो पाक है, वो उसको लेके जाएगा। तो ज़रूर इनमें फ़र्क जो है, वो देखा करें जब हम आयतें पढ़ते हैं, इसलिए बाइबल में से ही हवाले आपको दे रही हैं, मैं कोई स्टोरी या कुछ अपने से गढ़ के नहीं बता रही। उन आयतों पे गौर करें कि ये दुल्हन के लिए है
और ये जो है अक्लमंद कवारियों के लिए है। तो अक्लमंद कवारियों की क्या होगी, वो शहीदों में शामिल होंगी। तो अगर वो आए तब देखते हैं पढ़ते हैं तो उसमें जो कमियां थी, आपने गौर करना है कि कहीं ये मेरे अंदर तो नहीं है, तो फिर उनको निकालना है ना। ये तैयारी हो रही है। तो अगर तैयारी पूरी नहीं होगी तो फिर हम उठाए नहीं जाएंगे। जी, पढ़ना दूसरा तिमोथियस 2 बाब। जी। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਧਰੀ ਹੋਈ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। आमीन हने। यानी जिसका ईमान इस तरह का है, खुदावंद की सच्ची तालीम पे लिखा है कि खुदावंद उनको जानता है और उनके ऊपर मोहर लगी हुई है ना। जिसकी बुनियादें मजबूत है, जिसकी बुनियादें खुदा यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई हैं। जिस तरह वो जिंदगी खुदा यीशु मसीह ने गुजारी, उसी तरह की अगर मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, उस तरह का हमारा ईमान है खुदा के ऊपर, है ना। और ऐसे डावाडोल नहीं फिर रहे, है ना, झूठी तालीमों में या गलत तालीमों में कि क्यामत हो गई है, या गुमराह करने वाली जो तालीमें है ना, उनमें अगर हम पड़े हुए हैं अभी भी, तो इसका मतलब है कि फिर हम वो कीमती पत्थर नहीं बन रहे, और उस तरह की हमारी बुनियादें नहीं है ना। इब्रानियों 6 बाब उसकी पहली 2 आयतें। तो ਜੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਆਦ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵੱਲ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਧਰੀਏ, ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪਕ ਨਿਆਂ ਦੀ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, तो यहाँ पे भी खुदाम का बंदा हमें यही बता रहा है कि तालीम की बुनियाद जो है, यानी जो हमारी खुदावंद पे उस तरह की है, अगर उससे हट गए हैं, उससे फिर गए हैं, है ना, अगर हमारे अंदर अभी इब्तदाई ही बातों में अभी उतनी लड़ाई चल रही है ना, बहस मुबासा हो रहा है, क्या खाना है, क्या पीना है, या छूना है ना। ये बपतिस्मे जो है, यानी जैसे उसमें हमने मेरा ख्याल रोमियो के खात में पढ़ा है कि इस को छू लेते थे, किसी मुर्दे को छू ले, किसी चीज को छू लेते थे, तो दोबारा से उनको नहाना पड़ता था। या खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को भी फकीयों फरीसियों ने कहा कि ये तो बाहर से आते हैं तो हाथ मुंह धोए बगैर या नहाए बगैर ही खा लेते हैं। तो इन ही चक्रों में अगर अभी तक हम पड़े हुए हैं, तो या मुर्दा काम हमारी जिंदगी में अभी हैं, तो इस तरह का अगर हमारा ईमान है, तो हम उस तरह से फिर तैयार नहीं हो रहे, है ना। इब्तदाई उसमें से निकलें, दूध पीना हम छोड़ें, अब गोश्त खाएं। सख्त गज़ा जो है, अ, सख्त गज़ा मीन हमें बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं जब हम खुदा यीशु मसीह के साथ चलते हैं। बहुत सी चीजों में से निकलना पड़ता है, छोड़नी पड़ती हैं, है ना। और अभी तक हम पानी के बपतिस्मे के और रूल कुदस के, जिसके बारे में खुदावंद ने खुदावंद यीशु मसीह ने, और अमाल की बुक में भी हमने पढ़ा कि ये जरूरी है, लेकिन अभी तक हम उन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं कि इसके बगैर डाकू भी तो बचाया गया सी, इसके बगैर ये भी तो हो गया था, और मेरे अंदर तो रूह काम कर रही है। तो हम रूल कुदस का आगे आए तो बड़ी खूबसूरत है ना, कि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रोल कुदस में शरीक हो गए हैं, है ना, जो रोल कुदस में शरीक हो गए हैं और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके हैं, लेकिन फिर बरगश्ता हो गए, है ना। तो इस तरह की अगर हमारे अंदर अभी तक वो चल रही है, तो सोचें कि कैसे आप तैयार हो सकते हैं। आपको जो यीशु मसीह ने खुद तालीम दी, जो उसके शागिर्दों के जरिए मिली, अभी तक ना आपने उस कलाम के जैसे कलाम की जो सच्चाइयां हैं
उन पे ईमान ही अभी तक आपने नहीं लेके आए। तो आप सोचे कि आपने बुनियाद ही नहीं रखी, आपकी बुनियाद ही गलत है, गलत तालीमों पे है या झूठी तालीमों पे है। तो कैसे इस इमारत को खड़ी कर सकते हैं जिसको पता ही नहीं है कि मैं खुदा यीशु मसीह की दुल्हन हूँ, मैं इसलिए बुलाई गई हूँ, बुलाया गया हूँ, है ना? तो मुझे उस तरह से पाक बनना है ना? तो सोचें कि वो तो अभी बच्चा ही है, तो बच्चों को लेने खुदावंद नहीं आ रहे, खुदावंद मर्द को लेने आ रहे हैं। जिस तरह हम मुकाशवा की किताब में हमने पढ़ा था, मैन चाइल्ड, है ना, मर्द बच्चा, उसको लेने आ रहा है खुदा। बच्चे का मतलब यानी ये है कि जो बच्चे की तरह यानी हर बात को जैसे कलाम को कबूल करता है, बहस बम्बासी में तकरार में नहीं पड़ता। ये हमने रोमियो के खत में काफी इस पे बात की है ना। तो अभी तक हम बहस में उसमें तकरार में पड़े हुए हैं ना। तो आपकी बुनियाद जो है वो ही ठीक नहीं है। तो इसलिए जब बुनियाद ही खुदा यीशु मसीह की सच्ची तालीम पे नहीं है, तो फिर ये इमारत खड़ी कैसे हो सकती है ना? इसलिए अ, अभी उस बचपने में से हम निकलें और सच्ची जो तालीम है खुदा यीशु मसीह की जो कि बुनियाद है, उस पे इमारत रखें। इफिसियों 3 बाब उसकी 5 आयत अंजना। ਜੀ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮੀਨ। हाँ जी, ये बात ज़रूर याद रखें। हम मुकाशवा के सॉरी पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं कि ये सब ज़रूरी है ना? लेकिन पुराने अहदनामे के जो हमारे मुक़द्दसीन थे, जो नबी थे, उनके ऊपर ये भेद खुला ही नहीं था। जो दुल्हन का भेद था या इस नए यरूशलेम का भेद जो था, उनके ऊपर खुला नहीं था। ये तो खुला ही खुदावंद यीशु मसीह के जैसे कह लें कि शागिर्द जो रसूल हैं, जो नबी हैं, उनके ऊपर ये भेद खुला है ना? तो इसलिए हम पीछे जाके और उन आयतों को या उन पे गौर करते हैं ना। लेकिन ये भेद जो नए यरूशलेम का है, ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के ज़रिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे ऊपर खोला है ना? तो इसलिए अगर हमारी तालीम कि कुछ लोग जो हैं पुराना अहदनामा पढ़ते रहते हैं, है ना? और उस पे उनका ईमान है, तो नया अहदनामा पढ़ा ही नहीं है, तो इसीलिए फिर उनकी जो बुनियाद है वो सच्ची तालीम पे जो मेरे और आपके लिए है, जो मेरी और आपकी कॉलिंग है, फिर उन्होंने पता ही नहीं है साडी कॉलिंग की है, हमारी बुलाहट क्या है ना? कि हमें एक दुल्हन के तौर पे खुदावंद यीशु मसीह ने चुना है। लेकिन अगर हम तैयार नहीं होंगे, तो फिर हमारी जगह जो है नई ज़मीन या इतनी मोहब्बत होगी कि हम जान भी देने के लिए तैयार हो जाएँगे, तो फिर शहीदों में शामिल होंगे। जी आगे भी पढ़ना इफिसियों 2 बाब उसकी तो ये जी बुनियादें अगर सच्चाई पे रखी हैं, तो हम उन कीमती पत्थरों की मानद बन रहे हैं। जी हाँ जी। 21 और 22 ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਮੀਨ। हाँ जी, ये यहाँ पे मेरा हाल एक पिक्चर थी मैंने आपको दिखाई थी, कि एक इमारत बन रही है, मकान नहीं बन रहे, घर नहीं बन रहे, क्योंकि दुल्हन क्या है यहाँ पे ये देखें, ये एक है, एक बदन है हम बहुत से नहीं हैं, हमारी सोच एक है जैसे पालूस रसूल ने हमने ये रोमियो के खत में स्टडी में थोड़ा सीखा था कि एक ही बपतिस्मा है ना? एक ही हमारा ईमान है, एक ही और खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना महल 17 बाब में कहा कि मैं और बाप और रूहुल कुदस और हम यानी जो मसीह में आ गए अगर एक बदन है, एक रूह है ना? तो इस तरह से फिर हम दुल्हन बन रहे हैं। लेकिन अगर हमारी सोचें, हमारे जो किरदार है या जो कुछ भी है, हमारा ईमान फ़र्क-फ़र्क है, तो फिर हम कौमें बन रहे हैं। फिर हम दुल्हन नहीं बन रहे, फिर हम वो जैसे आप कह सकते हैं कि वो 5 जो कवारियाँ हैं, जो अक्लमंद कवारियाँ हैं, वो बन रहे हैं। हम दुल्हन नहीं फिर बन रहे। है ना? दुल्हन क्या है? एक ही है।
उसकी सोच एक है, खुदा यीशु मसीह की जो सोच है, जो उसके ख्याल हैं, वही अगर हमारे ख्याल हैं, तो हम इस तरह की इमारत जो है, यानी ये नया यरूशलेम क्या है, एक इमारत है। ये मकान नहीं है, ये घर नहीं है, मतलब ज्यादा एक ही इमारत बन रही है, सबकी एक सोच है, सबका एक बपतिस्मा है ना, सब में एक रूह काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये अगर हमारी फर्क फर्क सोचे हैं, तो फिर हम कौमें बन रही, फिर हम एक कौम नहीं बन रही, एक उम्मत नहीं बन रहे, है ना। और एक जो दुल्हन है, एक जिस्म जो होना चाहिए, वो हम नहीं बन रहे। अगला क्या था? पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 4 से 9 है। पहला पतरस जी अंजना सॉरी है हमारे सॉरी, मैं ਬੋਲ साथ? ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੂਡ ਸੌਰੀ। अच्छा। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਉਸਾਰਦੇ ਜਾਓ, ਕਿ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮੋਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰੱਦਿਆ, ਸੋ ਹੀ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚੱਟਾਨ, ਉਹ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਠਹਿਰਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद ने हमें इसीलिए चुना है कि वो इस तरह हमें बनाए, है ना, कीमती पत्थरों की मानिंद हम बने। लेकिन फिर क्योंकि हम आ, कुछ बातों को लेते हैं, कुछ गुमराह हो जाते हैं, कुछ झूठी तालीमों में पड़ जाते हैं, और फिर उस तरह का फल जो है हम नहीं लेके आते, और इधर उधर भटकते फिरते हैं, है ना। तो इसलिए कुछ जो खड़े रहते हैं, जो जिनकी बुनियादें मजबूत हैं, वो उस कीमती पत्थरों की मानिंद ये रूहानी जो घर है वो बन रहे हैं, उनमें तफरका नहीं है, उनमें जो अलग अलग सोच है वो नहीं है। जो कह दिया है खुदा यीशु मसीह ने, जो उसके शागिर्दों ने कह दिया है, हमें उस पे ईमान लाना ही लाना है ना। हमें उसमें जो एक कहते हैं शक व शुबा या सवाल जवाब वो नहीं करने। खुदा उनके शागिर्दों ने, खुदा यीशु मसीह ने कहा है, तो वो हमें करना ही करना है ना। तो इस तरह का ईमान अगर मेरा और आपका है, तो हम वो क्या बन रहे हैं, कीमती पत्थर हैं, और रूहानी घर बन रहा है हमारा, है ना। और हम अगर बुनियादें मजबूत हैं, जुड़ी हुई हैं, तो फिर हम हमें कोई भी हिला नहीं सका। कोई झूठी तालीम वाला या कोई गुमराह करने वाला आएगा, तो हमें खुदावंद का पाक रूह जैसे कहते हैं वो गाइड करेगा, वो समझाएगा। तो इसलिए हम फिर हिलेंगे नहीं, हमारी चट्टान जो है मजबूत है, हमें कभी भी हम भटकेंगे नहीं, हम गुमराह नहीं होंगे, है ना। पहला करंथियों 3 बाब उसकी 9 आयत में, जिसमें खुदावंद ने हमें बताया, टाइम तो हमारा हो रहा है लेकिन हम थोड़ा सीखेंगे। जी अंजना, पहला करंथियों जी 3 बाब उसकी 9 आयत से पढ़ना। ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋ। ਆਮੀਨ। आगे भी पढ़ना, ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ 13 आयत ਅਨੁਸਾਰ तक, ਜੋ हाँ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਨੀਂਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ, ਲੱਕੜਾਂ, ਘਾਹ ਅਤੇ ਭੌਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਆਪੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਖ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੜਦਿਆਂ ਸੜਦਿਆਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਪਵਿੱਤਰ है ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। आमीन। आमीन। हाँ जी, हम खुदा यीशु मसीह की हैकल हैं, यानी ये मुकद्दस जो शहर है वो मैं हूँ, वो आप हैं, है ना। तो ये इमारत हमने अभी जो पढ़ा क्या है कि कीमती पत्थरों से बन रही है ना। जो जिंदा पत्थर हैं, जो कीमती पत्थर हैं, यानी रूहानी जो पत्थर हैं, वो कौन है? मैं हूँ, वो आप हैं, है ना। तो ये बुनियादें खुदा यीशु मसीह ने रखना शुरू की, खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने। तो इसी तरह अगर इमारत रूहानी तौर पे मैं और आप बना रहे हैं तो वो कायम रहेगी। लेकिन अगर हम लकड़ी का, भूसे का या घास का रद्दे रखेंगे तो वो जब आग आएगी या वो जब दिन आएगा तो ये जल जाएंगे। कायम कौन रहेगा? जो कीमती पत्थर हैं, या जो कह लें सोने की तरह ताए हुए हैं, चांदी की तरह हमारा ईमान जो है। चांदी जो है एक किस्म की कह लें खलासी को, रिहाई को पेश करती है ना। तो वो लोग कायम रहेंगे। लेकिन जिन्होंने जो लकड़ी है वो एक इंसानी जो खसलत है, यानी जिस्मानी जो है लोग, ये उसको पेश करती है, सख्त होती है। यानी ये सख्त आप कह लें कि लोग जो होते हैं सख्त दिल कह लें, जो कलाम को एक किस्म का लेते नहीं है, अमल नहीं करने वाले लोग होते हैं ना, जिस्मानी लोग हैं, जिस्म की ख्वाहिशों के पीछे भागते रहते हैं। तो इसलिए लकड़ी जो है एक किस्म का क्या होगी? जिस्मानी काम यानी मुर्दा काम जो है वो क्या होगी? जब आग आएगी तो वो जल जाएंगे। और जो क्या कहते हैं भूसा है, तूड़ी जिसको कह लें, वो भी क्या होगी? जब एक किस्म का आग आएगी तो वो जल जाएगी, वो कायम नहीं रह सकते, है ना। यूहन्ना 15 बाब और उसकी जी। 4 और 5 आयत में जैसे खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा। जी पढ़ना। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਹਿਣੀ ਜੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਤਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਮੀਨ। आगे भी पढ़ना जहाँ लिखा है कि वो आग में जला दिया जाएगा। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। हाँ ਆਮੀਨ। जी, जब लकड़ी सूख जाती है, गिर जाती है खुदा यीशु मसीह से, तो वो उसका अंजाम क्या होगा? कि वो आग में डाल दी जाएगी, सूख के ਹਾਂਜੀ गिरेगी ਜੀ। भूसे की तरह, है ना। तो इसलिए ਜੀ। जो खुदावंद में जुड़े हुए नहीं है, जो अभी खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा, जो खुदावंद में जुड़े हुए नहीं है वो टहनी सूख जाएगी, उसकी जिंदगी में कोई फल नहीं होगा। जैसे वो दरख्त जो था उसके ऊपर सिर्फ पत्ते ही थे, अभी वो घास फूस का हम पढ़ते हैं, तो वो सूख गया था, है ना। जब खुदा यीशु मसीह ने उसमें कोई फल नहीं देखा था उस दरख्त में, तो खुदा यीशु मसीह ने उसको लानत की और वो दरख्त जो था वो सूख गया, अंजीर का दरख्त, है ना। और इसी तरह अगर हम खुदा के साथ जुड़े नहीं है, हमारी जिंदगी में फल नहीं है, तो
हम खुदावंद हमारे अंदर नहीं है जी। घास का पढ़ना, पहला पतरस पहला बाप उसकी 24 आयत। जो अपने ही आप को जलाल देते रहते हैं, खुदावंद को अपनी जिंदगी में जलाल नहीं देते। वो ये काम मैंने किया, ये काम मेरे अंदर ये कुव्वत है, मेरे अंदर हिकमत है, मैं खूबसूरत हूँ, या मेरे अंदर ये समझ है, मैं जो अपने ही नाम को जलाल देते रहते हैं, अपनी तारीफ चाहते हैं कि मेरी ही तारीफ होती रहे, है ना। तो खुदावंद उनमें नहीं है। वो खुदावंद के नाम को जलाल नहीं देते। या जो भी काम हम जैसे कह लें, फर्ज करें पास हो गए हैं एग्जाम में, या तो हम यही कहते रहे मैं बड़ी मेहनत की थी है मैंने। नहीं, खुदावंद के फजल से हम हुए हैं। उसके नाम को हम जलाल दें। उसने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दी, या उसने मुझे वो हिकमत दी, उसकी वजह से मैं जैसे कह कामयाब हुआ। जी पढ़ना, पहला जी। पतरस पहला बाप उसका 24 आयत। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਘਾਹ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਘਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ ਅਤੇ जी, ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਮੀਨ। हाँ जी। यानी घास की जो क्या कह लें, कोई वो नहीं है, वो तो जलाया जाएगा। हमारे जिस्म तो, ये वाले जिस्म तो खत्म हो जाने हैं, तो हम इसी को जलाल देते रहते हैं। लेकिन अगर हम रूहानी उन पत्थरों की मानिंद बन रहे हैं, तो रूहानी जो है बंदा, वो हमेशा अपने खुदावंद को जलाल देगा। इसलिए हम वो रूहानी पत्थर बन रहे हैं। हम अपने बदन को जलाल देने के लिए नहीं चुनेंगे, क्योंकि अब तो हम रूहानी, ओ सॉरी, जिस्मानी है ही नहीं है। हम जिस्म के तौर पे तो उसी दिन जैसे कह लें मर जाते हैं, जब हम खुदाम यीशु मसीह को कबूल करते हैं। क्योंकि क्या लिखा है, खुदाम यीशु मसीह ने कहा, नए सिरे से पैदा हो, है ना। यानी रूहानी तौर पे पैदा हो। जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं तब भी क्या कहते हैं, कि अब मैं दफन हो गया और अब मैंने मसीह को पहन लिया है ना। तो इसलिए हमारे जिस्म तो उसी वक्त खत्म हो जाते हैं, और हम रूहानी तौर पे जिंदा हो जाते हैं। तो जो अपने ही बदन को जलाल देता रहेगा, इसका मतलब है वो रूहानी पत्थर नहीं बन रहा। तो वो जब आग आएगी खुदावंद की, जैसे कह लें जो भस्म करने वाली आग है, जो सारी नाराजगी को भस्म करती है, तो जब हमारे अंदर होगी, नाराजगी होगी, तो वो भस्म हो जाएगी, जल जाएगी। और पहला पतरस यही, इसका पहला बाप और 7 आयत पढ़ना, ਤਾਂ ਜੋ कि जो ਤੁਹਾਡੀ शानदार। ਪਰਖੀ ਹੋਈ हाँ ਜੀ जी, हाँ जी, सॉरी। ਹੋਲਡ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਅਤ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਤਤ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ निकले। आमीन। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो इस तरह की हम जिंदगी गुजारे हैं, अगर 2 आयत में पढ़े हैं ना, जहाँ पे लिखा है कि तरह तरह की जो आजमाइशें हमारे ऊपर आती हैं, और हम उनमें से गुजर रहे हैं, तो हमारा मान जो है वो ताया जा रहा है। हमारा विश्वास, हमारा खुदाउन पे जो फेथ है वो आजमाया जा रहा है। वो आ, जैसे कह लें कुंदन बना रहा है खुदाउन, वो हमें उन कीमती जैसे कह लें पत्थरों की मानिंद बना रहा है। वो जो आजमाइशें हमारे ऊपर आती हैं ना, तो इसलिए अगर उस तरह हम ताए जा रहे हैं, तो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त, ये जो जो ज़हूर आता है ना, तो ये उस क्या उसका ये रैप्चर को शो करता है। जहां पे भी आप ज़हूर पढ़ेंगे, इसका मतलब है कि खुदाम यीशु मसीह जब बादलों पे आएगा, जब हम आसमान पे उठाए जाएंगे, ये उस दिन की बात हो रही है। यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरेंगे, अगर हम आजमाइशों में कायम रहते हैं। खुदाम यीशु मसीह पे हमें हमारा ईमान जो है वो बना रहता है। इसलिए ईमान जो है हमारा पाया जाता है ना। और ये इसी का 18 आयत पढ़ना, ਕਿਉਂ ਜੋ पहला, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ सॉरी, पढ़ो। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਚਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ ਨਿਸਤਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਚਾਂਦੀ सोने ਨਾਲ नहीं। आमीन। हाँ जी, अगर हमारा चाल चलन जैसे कहने अ, इस हमारी कॉलिंग के, हमारी बुलाहट के लायक नहीं है,
اور क्योंकि हमारी जो खलासी है वो सोने चांदी से नहीं, खुदा यीशु मसीह के बेश कीमती खून के जरिए से हुई है ना। और हमारे ऊपर कोई दाग कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर हम इस तरह से कह लें आजमाइशों में से जब गुजर रहे हैं, तो हमारा चाल चलन जो है वो खुदावंद के लायक होगा। जो हमारा बुलावा है, अगर पीछे ये सारा चैप्टर पढ़े तो यही बात हो रही है कि जो हमारा बुलावा है, जो हमारी कॉलिंग है, अगर उसके लायक हमारा चाल चलन है, तो हम उन कीमती पत्थरों की मानिंद बन रहे हैं। अगर नहीं, तो हमारी खलासी या हमें नजात, जैसे कह लें खुदा यीशु मसीह के खून के वसीला से, उसके नाम के वसीला से यानी मिल जाती है, निजात मिल गई है उसकी वजह से। लेकिन हमारा चाल चलन उसके, हमारे बुलावे के, हमारी बुलाहट के लायक नहीं है, तो हमें जिस तरह कह लें कि निजात ही मिलेगी। हम फिर उस के ज़हूर में जब जिस दिन खुदा यीशु मसीह आएगा उसमें दाखिल नहीं हो सकते। हमारा जो है ये जो कीमती पत्थर जो है, जो हमने ये पढ़ा आगे इसी चैप्टर का दूसरा जो है 4 आयत जो है 5 आयत, कि हम उन कीमती पत्थरों की माने मुझे और आपको बनना है ना। तो इसलिए कीमती पत्थर जो हैं, इनकी नेचर कह लें या इनकी जो खसलत है, जैसे हमने देखा कि जो लकड़ी है उसकी क्या नेचर है, वो जिस्मानी लोग हैं। लेकिन जो कीमती पत्थरों की माने तैयार हो रहे हैं, उनकी नेचर क्या होगी, इलाही होगी। यानी जैसे खुदावंद की नेचर है, जैसे खुदावंद में जो खसूसियात हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह में खसूसियात हैं, वो हमारे अंदर होंगी। तो इसलिए जो जिनकी खसलत जो है, जिनकी नेचर जो है वो खुदावंद की तरह है, वो है कीमती पत्थर। तो इसलिए अब हम जिस्मानी तो है ही नहीं, हम तो रूहानी हैं। तो हमारी जो चाल चलन है या हमारा जो सोच है, वो अगर खुदावंद यीशु मसीह की मानिदर उस खुदावंद के रूह की तरह है, यानी जो खुदावंद पाक रूह हमारे अंदर काम कर रहा है, रूहुल कुदस काम कर रहा है, जो कुछ वो हमें समझाता है या बताता है या तैयार कर रहा है, तो अगर हम उस तरह से तैयार हो रहे हैं उन कीमती पत्थरों की माने, उसके जैसे कह ले रहनुमाई में चल रहे हैं, जिस तरह हमने सीखा था कि जो हनूक था वो लिखा है खुदावंद की हदायत में चलता रहा वो और आसमान पे उठा लिया गया, है ना, जिंदा आसमान पे। तो अगर हम भी खुदावंद की हदायत से या पाकरू की हदायत से चलने वाले लोग हैं, हमारी नेचर इस तरह की है कि हम अपनी मर्जियां नहीं करते, जिस्म की मर्जी नहीं करते, आंखों की जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक जिंदगियां नहीं गुजारते, तो इसका मतलब है कि फिर वो ज़ुहूर का दिन जब आएगा तो हम आसमान पे उठाए जाएंगे। तो हम उन कीमती पत्थरों की मानते, यानी हमारी नेचर जो है इलाही है, यानी हमारी अ, जो आसमानी चीजें हैं उनकी तरफ हमारी आंखें लगी हुई हैं। हमें दुनिया की चीजों से या दुनिया के रंग नलियों से या इसकी फिक्र नहीं है। हमें जो आसमानी चीजें, जो रूहानी चीजें हैं, जो आसमान पे हमें मिलेंगी, उनकी एक कह लें कि फिक्र में या उनकी तरफ हमारी आंखें लगी हुई हैं। हमारी नेचर इस तरह की है कि खुदावंद की रूहानी बरकतें की हम तलाश में हैं। तो हम उस जो ज़ुहूर होगा खुदावंद यीशु मसीह जब बादलों पे आएंगे, तो हम उठाए जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम उनकी तलाश में रहें और इन कीमती पत्थरों की मानिंद बने। जैसे शागिर्दों ने कैसे जिंदगी गुजारी, सब ही शागिर्दों की वो शहीद हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम की खातिर। और कभी कैद में, कभी उनको कोड़े मारे जाते थे, कभी जलालत बर्दाश्त करनी पड़ती थी, कभी भागते थे इधर से दूसरे शहर चले जाते थे, दूसरे से तंग करते थे लोग, सताए जाते थे तो दूसरी शहर चले जाते थे। तो लेकिन वो इन सारी मुसीबतों को, जैसे पालूस और सलास भी क्या कर रहे थे, कैद थे, बेड़ियों में जकड़े हुए थे, लेकिन खुदा उनकी हमद और तारीफ कर रहे थे, है ना। मुसीबतों में वो तसल्ली में थे, उम्मीद में थे, खुशी में थे कि ये खुदा उनके साथ
खातर वो मुसीबतें जो हैं सह रहे हैं। अगर हमारी इस तरह की खुदावंद के साथ मोहब्बत है और इस तरह जैसे कह लें अपनी-अपनी जो सलीब है मैंने और आपने उठाई हुई है, कि चाहे तंगी आ रही, तकलीफ आ रही है, आज़माइशें आ रही हैं, किसी ने भी आज तक मेरा ख़्याल है, कोई भी नहीं है, जितना दर्द हमारे यीशु ने सहा है, उससे ज़्यादा दर्द किसी ने नहीं सहा, है ना? तो हमें थोड़ा-सा दर्द होता है तो हम हाय हाय करना शुरू हो जाते हैं ना? तो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी और आपकी खातिर वो सारे दर्द बर्दाश्त किए और उसने कहा कि जिस तरह मैंने सलीब उठाई है, मेरे पीछे आना चाहते हैं तो उस तुम भी अपनी-अपनी सलीब उठाओ। तो इन मुश्किलों में से, इन परेशानियों में से, आज़माइशों में से मुझे और आपको गुज़रना पड़ेगा। तब ही जाके हम उस कीमती पत्थरों की मानद बनेंगे और अगर नहीं तो फिर हम जैसे कह लें सिर्फ हमारी रूह ही बची है, तौबा करते हैं, माफ़ी माँगते हैं खुदा यीशु मसीह, तो फिर नई ज़मीन में, एक कोने में हो सकता है मुझे और आपको कहीं जगह मिल जाए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो बुनियादें जो हैं ये यरूशलेम की जैसे खुदाम यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर था और खुदाम यीशु मसीह के शागिर्द ये जो कलर नजर आ रहे हैं ये सारे खुदाम यीशु मसीह के शागिर्द जो थे मुकाशवा की किताब में हमने जो पढ़ा कि वो क्या थी बुनियादें थी खुदाम यीशु मसीह की शागिर्द जो थी वो बुनियादें थी उन्होंने कीमती पत्थर एक किस्म के रखे अपनी जिंदगी तो मैं और आप भी इन कीमती पत्थरों की मानद बनते जाएं तो उस यरूशलेम में दाखिल होंगे क्योंकि वो मैं और आप खुद बना रहे हैं तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी आ, इन कीमती पत्थरों की मानद बनाए हमने घास फूस का और क्या कहते हैं लकड़ी का जो रद्दे हैं वो नहीं रखने और सोने चांदी के भी नहीं रखने हमने कीमती पत्थरों के रद्दे जो हैं वो रखने हैं है ना तो खुदावंद आप सबको बरकत दे गॉड ब्लेस यू हम कीमती पत्थरों की मानद बनते जाएं हालेलुया यस लॉर्ड जीसस खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो खुदावंद आज तेरे इस मीठे कलाम के लिए और खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें कीमती पत्थरों की मानद बना रहा है क्योंकि खुदावंद खुदा तूने हमें दुनिया से इसीलिए चुना है खुदावंद कि तू हमें अपनी दुल्हन बनाना चाहता है खुदावंद तू हमें ये स्टडी ये अपने गहरे भेद अपने दिल की बातें इसीलिए बताता है कि खुदावंद तू चाहता है कि हम जितने भी इस ग्रुप में हैं जितने भी इस वक्त इस मीटिंग हैं या इसको सुनेंगे खुदावंद खुदा जिन तक तेरी ये आवाज तेरे दिल की ये बात पहुंच रही है खुदावंद तूने उनको इसीलिए चुना है ते तूने खुदा तूने इसलिए उनको अलग किया है कि तू उनको दुल्हन की मानिद खुदावंद तू उनको कीमती पत्थरों की मानिद बनाना चाहता है खुदावंद तेरा ये मसा खुदावंद खुदा यीशु के नाम से एक एक के ऊपर ठहर जाए खुदावंद ताकि हम में से कोई भी रहा हुआ ना हो कोई भी खुदा हमारे में से उस 5 कंवारियों की मानित ना हो जो अक्लमंद कंवारियां हैं खुदावंद हम सब वो तेरी पाक दामन कंवारी की मानित बने खुदावंद खुदा जिसमें तेरी खुसूसियात पाई जाती हैं जिसमें पाक तरीन ईमान है पाकीज़गी है खुदावंद मोहब्बत है हलीमी है खुदावंद वही 7 रूहें हमारी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाए वो जो तेरी रास्तबाजी है वो हमारे अंदर काम करना शुरू है हम तो कुछ नहीं कर सकते खुदावंद हमारे अंदर कोई ऐसा जोर नहीं कोई ताकत नहीं है कोई अकल नहीं है लेकिन खुदावंद तेरी हिकमत से तेरे जोर से खुदावंद ये सब कुछ हम करने की कुदरत जो है वो रखते हैं क्योंकि खुदावंद तूने हमें पाक रूह से भरा है खुदावंद तूने हमें इख्तियार दिया है कि जब भी ऐसी कोई गलत तालीमें ऐसी झूठी तालीमें खुदावंद ऐसे गुमराह करने वाले आते हैं तो खुदावंद तेरी हिकमत से तेरे पाक रूह से तेरी रूह के इम्तियाज से खुदावंद हम वो सब जान सके और उन पे गलबा पा सके जब मुर्दा तारीकी के काम खुदावंद शैतान हमारी जिंदगी में लेके आता है तो हम जाने कि ये हमें उस तरफ लेके जा रहे हैं जब तेरी आग आएगी तो वो जल जाएंगे खुदा खुदा हम
हम उन कीमती पत्थरों की मानिंद नहीं बन सकेंगे खुदाम। तो इन मुर्दा कामों को, इन तारीकी के कामों को जो हमें मौत की तरफ लेके जाते हैं, जो जहन्नम की आग की तरफ हमें लेके जाते हैं खुदाम, वो सब हमारी जिंदगी से खुदाम खुदा वो खत्म हो जाए, उनके सारे लिंक टूट जाए खुदाम यीशु के नाम से, और हम उस पाक दामन कमवारी की मानिंद तैयार हो जाए, ताकि खुदाम यीशु मसीह हमारे बदनों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, और हम तेरे साथ उस तेरे जलाल में दाखिल हो सकें, और फेस टू फेस हम तुझे देखें खुदाम खुदा। खुदाम हमारी आंखें उस तेरे जलाल को देखें जो तू हमें दिखाना चाहता है, जिसके लिए तूने चुना है खुदाम खुदा। यीशु के नाम से खुदाम एक एक के ऊपर तेरा मसा ठहर जाए खुदाम खुदा, एक एक को खुदाम यीशु तू तैयार कर खुदाम। जहां कहीं भी दुश्मन की फौजें, दुश्मन के बदी की कुव्वतें हमारी जिंदगियों में काम कर रही हैं, यीशु के नाम से एक एक की जिंदगी से वो निकल जाए यीशु के नाम से, और तेरे पाक फरिश्ते तेरे खुदाम तेरे साथ रूहें तेरे खुदाम खुदा पाक फरिश्ते हमारी तेरे मददगार फरिश्ते खुदाम खुदा हमारी हिफाजत करें, हमें पाक हमें साफ करें यीशु के नाम से खुदाम खुदा। कोई भी खुदाम हमारे जो ग्रुप में है खुदाम खुदा, यीशु के नाम से किसी को भी अबलीस छीनने ना पाए खुदाम। यीशु के नाम से इनके ऊपर तेरी मोहर हो खुदाम खुदा। खुदाम तू इनको पहचानने वाला हो खुदाम, जैसा तेरे कलाम में हमने पढ़ा कि तू अपने लोगों को पहचानता है, तू अपने लोगों को जानता है खुदाम खुदा। ये सब तेरे पहचानने वाले, तेरे जानने वाले लोग हो, इन सब के ऊपर, हम सब के ऊपर तेरी मोहर लगी हो, हमारे ग्रुप के एक एक मेंबर के ऊपर, सबकी फैमिलियों के ऊपर खुदाम यीशु तेरी मोहर लगा देते हैं यीशु के नाम से खुदाम खुदा। खुदाम तेरा पहरा हमारे चौगिर्द लगा रहे खुदाम यीशु के नाम से खुदाम। हम तेरे लोग, तेरी पाक कौम बन जाए खुदाम खुदा यीशु के नाम से खुदाम। एक रूह में बंद जाए खुदाम खुदा, रूह हमारे अंदर काम करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम सब मिलकर एक रूह में बंद कर इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। Amen. Amen. God bless you. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया।